Hello children, welcome to your English video class. Children, if you're watching the videos, then you must be aware that we are doing grammar, and in grammar we are doing unit 15 of your grammar book, which is more about nouns. Now in this unit we were doing singular and plural form of nouns. And in my previous video, I have completed that topic of changing singular noun into plural nouns. Now, in today's video, I will start another section of this unit, which is related to genders. Children, genders in noun, there are basically two genders, that is masculine and feminine, but there are neuter gender also. There are certain genders which cannot be categorized into masculine or feminine. They are used for both. They are used both in masculine as well as feminine gender. Okay. So in this unit, in this section of the unit, we will study about masculine and feminine gender, but I will also explain you about neuter gender and some common genders, neuter gender and common gender. Okay, but before that, let me explain you what masculine and feminine gender is. Okay. Masculine and feminine gender. But as I have told you that though we are going to study first about masculine and feminine gender, but there are actually four types of gender in noun. Noun we have already studied. Noun means names of person, place, thing, animal, birds. All these comes under noun. Now, the nouns falls in these four categories gender-wise. Either the noun may be masculine, or it may be feminine, or it may be common gender, or it may be a neuter gender. Four types of genders are there. Let me write four types of genders. एक तो ये यहाँ पे हम लिख ही रहे हैं masculine, feminine, there is common, these are the four types of genders in noun. Four types of genders होते हैं. One is masculine, another is feminine, third one is common gender, and fourth one is neuter gender. We will first study about these two genders which are mentioned at the top of this topic, because we have to start with this only, and then later on I will explain you this common and neuter gender. But let me give you the hint. First, let's discuss this masculine gender. Now, masculine gender are those gender which refers to male, जो male को रेफर करता है, that is masculine gender. Male को रेफर करता है मतलब जिससे बॉय का या किसी मैन का होने का पता चलता है, जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मैस्कुलाइन
जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, मेल वाला, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन एग्जाम्पल हम मैन इज अ मेल जेंडर, बॉय इज अ मेल जेंडर, बट इट इज नॉट दैट कि ह्यूमन में ही मेल जेंडर होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, लायन होता है, बुल होता है, ठीक है। तो एनिमल्स में भी जो मेल जेंडर होगा वो भी मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाएगा, नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो एनिमल्स। अच्छा, फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल जेंडर वाले नाउन, फीमेल जेंडर नाउन को हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। अभी फीमेल जेंडर में जैसे गर्ल, वुमेन, लेडी, बट अगेन आई विल से कि फीमेल जेंडर सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता है, इंसानों में नहीं होता है, एनिमल्स और बर्ड्स में भी होता है ना। लायनेस, टाइग्रेस, पीहेन, तो एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, इन सब में जो फीमेल जेंडर नाउन होता है, फीमेल जेंडर नाउन दैट इज फेमिनाइन जेंडर। ओके, फीमेल जेंडर नाउन इज फेमिनाइन जेंडर, मेल जेंडर नाउन इज मैस्कुलाइन जेंडर। Male gender noun in humans, in birds, in animals, all will come under this category. Male gender noun in humans, animals, birds. Female gender noun in animals, humans and birds. वो ये सारा इसमें आ जाएगा। Masculine gender जैसा मैंने बोला कि it is not only related to humans. So we will discuss genders, male genders noun of humans, animals and birds. When we move to female gender, we will study about human female gender, bird female gender and animal female gender. Then coming to common gender. Now what is this common gender? Common gender क्या होता है? That can be used for both male and female gender, जो दोनों के लिए यूज हो सकता है। Okay? The gender which can be used for both male and female, मतलब ये जो जेंडर है कॉमन जेंडर, इट कैन बी यूज्ड ईदर फॉर मेल और फॉर फीमेल और फॉर बोथ, मतलब फीमेल जेंडर के लिए भी यूज हो सकता है, मेल जेंडर के लिए भी यूज हो सकता है, या दोनों के लिए यूज हो सकता है। इसमें कौन कौन से आएंगे? आई विल गिव यू एग्जाम्पल, आपको मैं बताऊंगी। व्हेन we'll do the exercise, when I'll give you the examples, then हम इस पे भी आएंगे। Here I am only explaining you the meaning, okay? So common gender is common to all, for male and to female. Then coming to neuter gender. Now neuter gender noun वो nouns होते हैं जो ना मेल में की कैटेगरी में आते हैं और ना ही फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। They are neither male gender nor female gender. इसमें बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, मोस्ट कॉमनली इसमें नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, तो वो हम उनको बोलते हैं न्यूटर जेंडर, जिसका कि कोई जेंडर नहीं होता। दे डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द जेंडर्स, ना मेल ना फीमेल ना कॉमन। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, बट वी विल स्टार्ट विथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, उससे स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे फिर आपको मैं इसमें कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपको मीनिंग सिर्फ समझाया है मैंने। नो लेट्स सी द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स। मैस्कुलाइन जेंडर जो ही यूज होता है, he is used for masculine gender and she is used for feminine gender. Okay, he for masculine and she for feminine. Now let's take some examples of masculine and feminine gender. पहले हम examples लेंगे masculine gender के और उनके feminine gender, the feminine gender of certain masculine genders. Later on we'll move on to common.
सबसे कॉमन लेते हैं। द क्लास हैज बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, तो कॉमन हम गर्ल्स बॉयज से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड विल टेक बॉय। सो व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ बॉय? बॉय का ऑपोजिट जेंडर मतलब कि फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? बॉय का ऑपोजिट जेंडर है गर्ल। बॉय गर्ल, बॉय का ऑपोजिट जेंडर गर्ल। ओके, देन विल टेक मैन। जो आपके पापा हैं, फादर है, ही इज अ मैन, तो मैन का ऑपोजिट जेंडर, व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ मैन? वुमेन। मम्मी जो है वो वुमेन है, WOMAN, मैन वुमेन। अच्छा, अब हमने बोला अभी कि आपके जो फादर हैं वो मैन है, मम्मी है वो वुमेन है, तो फादर वर्ड यूज किया। अगेन फादर जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है। फादर क्योंकि मेल है तो मस्कुलाइन जेंडर है। सो व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ फादर? फादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? मदर। आपकी मम्मी जो है वो फेमिनाइन जेंडर है, मदर। फादर, मदर। ओके, नाउ we'll take gentleman. Father is a gentleman. So what is the opposite of gentleman? Opposite of gentleman is not gentlewoman. आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैन है तो जरूर यहाँ पे जेंटलवुमेन हो जाएगा। जेंटलमैन का ऑपोजिट जेंडर जेंटलवुमेन नहीं होता है। मैन है तो जरूरी नहीं है कि उसका ऑपोजिट जेंडर वुमेन हो जाएगा। द ऑपोजिट जेंडर ऑफ जेंटलमैन इज लेडी। ओके, जेंटलमैन लेडी। ठीक है। नाउ अब सबके घर में दादा दादी नाना नानी है होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड पेरेंट्स। यस ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बट अगर हम जेंडर की वजह से हम जेंडर वाइज अगर डिसाइड करें तो ग्रैंड फादर है ना, दादाजी हैं, नाना जी हैं, तो वो क्या है? ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। यहां पर फादर, यहां पे मदर। वो ग्रैंड जो है वो कॉमन है, बट हियर इट इज नॉट सेम। जेंटलमैन जेंटल लेडी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। और ब्रदर, जिनके भाई होंगे उन्हें पता है ना, ब्रदर। ब्रदर इज अ मस्कुलाइन जेंडर। ब्रदर जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है, तो इसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा ब्रदर का? सिस्टर। SISTER। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। ठीक है। अच्छा, और आप देख लें, अभी हम ह्यूमंस वाला ही पहले देखते हैं, एनिमल्स पे भी चलेंगे, बर्ड्स पे भी चलेंगे। और किंग, अब राजा बन जाते हैं, किंग। तो किंग का ऑपोजिट जेंडर होता है क्वीन। किंग, क्वीन, किंग, क्वीन। अब चलिए इसको अब इरेज कर देते हैं, सो दैट वी कैन राइट सम मोर। अब बात करते हैं एक और मैस्कुलिन जेंडर, दैट इज अंकल। है ना, आपके घर में अंकल होंगे, सबके मामा चाचा, हम इंग्लिश में तो सारे अंकल होते हैं, तो अंकल। और अंकल का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? आंट। AUNT। एंट नहीं कोई बोलेगा, एंट तो चींटियां होती हैं, इंसेक्ट होते हैं ना। तो अंकल
aunt. Uncle, aunt. Then we have nephew. जो जितने भी बॉयज हैं वो अपने अंकल के क्या है, नेफ्यू हैं. द बॉयज आर नेफ्यू ऑफ देयर अंकल्स. अपने अंकल के वो नेफ्यू हैं. और जो गर्ल्स हैं वो अपने अंकल की क्या है, या अंकल की या आंट की, दोनों. हम अंकल की बात नहीं करेंगे, आंटी को भी ले लेते हैं. तो जो बॉयज हैं वो अपने अंकल और आंट के नेफ्यूज हैं, और जो गर्ल्स हैं वो अपने अंकल और आंट की क्या है, नीज. नाइस नहीं बोलना, नीज. नेफ्यू, नीज. नेफ्यू, नीज. आप अपने अंकल आंट के, अगर आप बॉय हो तो नेफ्यू हो, और अगर आप गर्ल हो तो आप नीज हो. नेफ्यू, नीज. अच्छा, हीरोज की बात करते हैं, फिल्मों के हीरो की बात करते हैं. तो जो मेल हीरो होते हैं, they are called hero, and the females are called heroines. Hero and heroine. Next comes to actor. जो एक्टिंग करता है वो क्या है, एक्टर. ACTOR. एक्टर and actress. Actor and actress. ACTRESS. Actor, actress. Actor, actress. Let's take some more. ये एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया. अभी कुछ बचा है? यस, प्रिंस. PRINCE. प्रिंस. जो किंग का जो सन होता है उसको बोलते हैं प्रिंस. किंग के सन को बोलते हैं प्रिंस, और किंग की डॉटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसेस. PRINCESS. प्रिंस, प्रिंसेस. प्रिंस, प्रिंसेस. देन आपको जो मेल टीचर जो पढ़ाते हैं, दे आर कॉल्ड सर. है ना, ऑफिस में भी सर होते हैं. सर एंड मैम. MADAN. इसको आप मैडम भी बोल सकते हो और मैम भी बोल सकते हो. सर, मैम. मैम या मैडम, दो बोथ आर करेक्ट. मैडम भी सही है और मैम भी सही है. सर, मैम. और लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं, जो मकान मालिक होता है, मेल जो होता है, मकान का मालिक. जो लोग रेंट पे रहते हैं तो उनका मकान मालिक भी होता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉर्ड. अगर वो मेल है तो हम कहेंगे लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड. और अगर वो फीमेल है तो हम कहेंगे लैंड लेडी. लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी. ठीक है, चलिए और देख लेते हैं. Then we have son. All the boys are son of their father. है ना, जितने भी बॉयज हैं वो अपने पापा के क्या है, सन है, बेटा है. SUN नहीं, SON, सन. ये भी एक होमोफोन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे होमोफोन के बारे में. अभी मैं आपको जो बता रही हूँ, SON, सन, ये है, इसका मतलब होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं बेटा. ठीक है. ऑल बॉयज आर सन ऑफ देयर फादर. तो अब ऑल गर्ल्स आर डॉटर्स. DAUGHTER. All girls are daughter of their parents. I'll say not father.
पेरेंट बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है. All boys are son of their parents and all girls are daughter of their parents. Now this is the pronunciation is daughter. इसको daughter नहीं बोलना, daughter नहीं बोलना है. Pronunciation is daughter. It is pronounced as daughter. इसको daughter नहीं बोलना है, क्या बोलना है? Daughter. ठीक? Son, daughter. कुछ और देख लें. अभी हम ह्यूमंस वाला ही कर रहे हैं, इंसानों वाले ही हम जेंडर्स कर रहे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स पे नहीं पहुंचे हैं. अभी हमारा कुछ बचा है. ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें आपका ग्रेड 2 के हिसाब से भी चलना है. तो अब ले लेते हैं हस्बैंड. योर फादर इज हस्बैंड ऑफ योर मदर. Husband is a masculine gender. Husband is a masculine gender. तो husband का क्या होगा? Opposite gender? Wife. Yes. Your mother is wife of your father. Husband and its opposite gender is wife. Husband, wife. कुछ और बचा है? और भी है, आपके ग्रेड के हिसाब से देख रहे हैं. देयर इज वन मोर, कुछ और ले लेते हैं. नॉट वन मोर, लेट्स टेक फ्यू मोर. वन इज विजार्ड. जो जादूगर जिसको बोलते हैं विजार्ड, WIZARD. विजार्ड होता है एंड इसका ऑपोजिट होता है. मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपने ये ना जब स्टोरी बुक्स में ये वर्ड यूज सुना होगा, विच, जादूगरनी, है ना. Witch, WITCH. विजार्ड का ऑपोजिट जेंडर होता है विच. ओके, विजार्ड, विच. देन और लेंगे हम ह्यूमंस पर. अच्छा, थोड़ा सा अब गॉड पे आ जाते हैं. गॉड क्योंकि हम यूज करते हैं हमेशा, तो वी प्रे टू गॉड. मेल गॉड है तो गॉड, और अगर फीमेल है तो हम बोलते हैं गॉडेस. GODDESS. स्पेलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है. गॉड, गॉडेस. गॉड इज मैस्कुलाइन एंड गॉडेस इज फेमिनाइन. गॉड, गॉडेस. देन लेट्स टेक वन मोर. होस्ट. हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम उनके लिए क्या है? होस्ट है. तो होस्ट इज द मेल पार्ट. मैस्कुलाइन वर्ड इज होस्ट. और इसका ऑपोजिट जेंडर, इसका जो फेमिनाइन जो जेंडर है वो क्या होगा होस्ट का? होस्टेस. होस्ट, होस्टेस. होस्ट, होस्टेस. Host, hostess. Then और लें. चलिए, इतना काफी है ना. फिर अब हम चलते हैं एनिमल्स को ले लेते हैं. कुछ एनिमल के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर देख लेते हैं. एनिमल्स वाले. सबसे पहले हम कॉमन सा ले लेते हैं बुल. BULL. बुल. आपने रोड पे अक्सर देखा होगा, जिसे हम हिंदी में सांड भी बोलते हैं. बुल. और बुल का जो फेमिनाइन जेंडर होता है, ऑपोजिट जेंडर होता है, वो होता है काउ. ऑपोजिट जेंडर ऑफ बुल इज काउ. बुल, काउ. Okay, then let's take rooster. जो मुर्गा होता है बड़ा सा, उसको rooster बोलते हैं. इसे कॉक भी बोलते हैं, लेकिन इसे कॉक ऑल्सो. रूस्टर या कॉक दोनों ही यूज किया जाता है. जो बड़ा सा मुर्गा जिसको हम बोलते हैं. और इसका ऑपोजिट जेंडर क्या है?
hen, HEN, hen। अब इसी से मिलता जुलता एक और ले लेते हैं, पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। और पीकॉक का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, फीमेल जेंडर, जो फेमिनाइन जेंडर, पी hen, जो कि यहाँ कॉक है, जैसे कि ये कॉक है, तो ऑपोजिट जो जेंडर है वो हो जाता है hen, पीकॉक एंड पी hen, पीकॉक, पी hen। फिर ले लेते हैं हम ये एनिमल्स और बर्ड्स, हम एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड बर्ड्स को हम इकट्ठा लेंगे, उसको हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं। तो पीकॉक एंड पी hen, उसके बाद टाइगर, टाइगर एंड इट्स ऑपोजिट जेंडर इज टाइग्रेस। पर थोड़ा स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है, TIG। अब टाइगर में आप ER लिखते हो, बट व्हेन यू राइट टाइग्रेस द स्पेलिंग इज चेंज्ड, TIGRESS, टाइग्रेस, ER का RE हो जाएगा, टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। देन हम ले लेते हैं डॉग, वेरी कॉमन एनिमल, डॉग, और इसका ऑपोजिट जेंडर होता है बिच। Often used as abusive word, but the female version, female gender of dog is bitch. Dog, bitch. Then we have lion, lion, and its opposite gender is lioness, LIONESS, lion, lioness, okay. Then fox, fox, masculine gender is fox and its feminine gender is vixen, VIXEN, fox, vixen. Bull, cow, rooster, hen, peacock, peahen, tiger, tigress, dog, bitch, lion, lioness, fox, vixen। चलिए कुछ और करेंगे, पहले इसको मेरेज कर लेते हैं। Then drake, 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 and its feminine gender is duck, duck, drake। और एनिमल्स देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जेंडर हमें पढ़ने हैं। तो then we have horse, horse, and its the feminine gender, its feminine gender is mare, MARE, horse, mare, horse, mare। Then we have और एनिमल देख लेते हैं, हॉर्स में हो गया। देन वी हैव स्टैग, STAG, स्टैग, जो हिरन होता है, मेल हिरन जो होता है उसको बोलते हैं स्टैग। और इसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो क्या होता है, हाइंड, HIND, स्टैग, एंड इट इज नॉट हिंद, इट इज कॉल्ड हाइंड, stag, hind, stag, hind। Then we have drone, 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 जो मक्खी होती है ना उसका, ड्रोन जो मेल मक्खी है,
बी होता है उसको बोलते हैं ड्रोन, और इसका फेमिनाइन जेंडर है बी, ड्रोन, एंड फेमिनाइन जेंडर इज बी, ड्रोन बी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने कुछ ह्यूमंस वाले किए मैस्कुलाइन जेंडर और कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स वाले की। We'll continue this in the next video also. We'll do some more human genders and some animal and birds gender, but not today. We'll do that in the next video. Okay? Go through it, learn it, and we'll meet in the next video. Thank you.